Bismillahirrahmanirrahim. Let's start with lecture number 3 for web technologies and programming. Today we are going to cover two topics. Number 1, requirement engineering for the web app-based applications, and number 2, modeling web applications. Before going to proceed, let's review the previous lecture content. In the previous lecture, we have first of all studied about development process model. We have discussed about different development process activities, including requirements, design, implementation, validation, operation and maintenance. So then we have considered requirement for a web development process model. Then after requirement process, we have discussed rational unified process model. Rational unified process, we have shown that it is the most suitable process for the development of web-based applications. The second content that we have covered in the previous lecture is project management. We have shown different responsibilities of a project manager: planning phase for writing the project proposals, then all the risk associated with the project and how to minimize them, then the people management, and finally we have discussed reporting with respect to the responsibilities of a project manager. Then proposal writing for our project plan, and in the end we have discussed the difference between a traditional project management and a web-based project management. Outline for the today's lecture. In today's lecture we are going to cover two aspects. First aspect is related to requirement engineering. We will discuss about introduction to the requirement engineering. Then we will consider requirement engineering basics. Moving towards, we will proceed for the requirement specification. Then we will go for the requirement engineering process, and then we will consider the requirement engineering specification in web engineering, and then we will proceed for system modeling and modeling requirements. First of all, requirement engineering. Requirement engineering includes the principles, methods and tools for drawing, for describing, validating and managing project goals and needs. What does it mean? Basically, ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसके ज़रिए आपके किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के जो गोल्स होते हैं वो आप डिस्क्राइब करते हैं, उनको आप वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं कि ये आपके राइट गोल्स आपने प्रॉपर वे में डिफाइन कर लिए हैं, और जो आपने डिफाइन किए हैं ये यूजर की नीड्स को, कस्टमर की नीड्स को मैच कर रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल स्टेज है, और मोस्टली इसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं किया जाता, एंड इट इज बैडली एग्जीक्यूटेड, इट इज पुअरली एग्जीक्यूटेड. Why? Because of problems and issues in requirement engineering
that we will study in the coming slides. So requirement engineering range may vary from high level general statement of a service or of a system content to detailed mathematical functional specification. So these are basically boundaries that are defined for requirement engineering. कि आपकी requirement engineering के scope क्या है, abstract level पे, generic level पे आपकी कोई statement है या किसी specific mathematical calculation का एक specific detail level पे आपका कोई function है, उसको आपने specify किया है. So ये complete एस्पेक्ट जो है कि जेनेरिक से लेके बहुत स्पेसिफिक डिटेल तक आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का स्कोप है. ईच एंड एवरी डिटेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग. द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन डोमेन. नंबर 1, द पीपल इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, एंड the organization developing the requirements. कौन सी organization है जो requirements develop कर रही है, उस organization पे depend कर रहा होगा. But still, whatever the organization in project is, requirement engineering depends on the following common activities. So the common activities include, number 1 is requirement elicitation, the first step. Then requirement analysis, second step. Then requirement validation, third step. And then requirement management, fourth step. This diagram clearly explains the requirement engineering process, starting from the feasibility report, as we have already discussed in detail in the previous lecture, that lecture number 2, feasibility report. Considering the feasibility report, requirement elicitation process is performed. Requirements are gathered using different techniques like brainstorming session, interview technique, discussion with the stakeholders. And these requirements are then analyzed, and depending upon cost, time and budget, the requirements are filtered and final agreed upon requirements are specified. These agreed requirements are documented in a document that is said to be software requirement specification document, and these are the user and system requirements. These requirements are then validated that these are testable or not, traceable or not, manageable, controllable and enhanceable or not. So considering these are finalized in the document, that is SRS. So the factors that are to be considered for the requirement engineering are cost, number 1. Because of inadequate software architectures, not the required software architecture functions are integrated. And secondly, because of some unforeseen problems, like because of a lot of budget extent, because of delays in time, because of the communication gap for what is asked rather than what is designed or developed, the cost varies. And due to these factors, the user is not going to accept your product warm welcome. Because of this problem, the user is not going to accept your product in a good manner. So why we need to have requirement engineering? Requirement don't define themselves. This is defined by Bell and Thayer in 1976. So they said that requirements are not defined by themselves, means requirements are evolved, requirements are changed, and requirements are defined by users, by clients, according to the scenarios, according to the need. So removal of mistake post hoc is up to 200 times more costly. It does mean that जो requirements हैं आपकी
वो आपकी अगर रिक्वायरमेंट्स लेवल पे ही उनमें कोई इश्यूज या फॉल्ट्स को डिटेक्ट कर लिया जाए तो वो बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू कि वो लेटर स्टेजेस पे आपकी क्वालिटी की स्टेजेस पे, टेस्टिंग की स्टेजेस पे जाके उनको डिटेक्ट किया जाए उन मिस्टेक्स को, तो वहां पे ये ज्यादा कॉस्टली होंगी, वहां पे ये 200 टाइम्स इफेक्ट कर रही होंगी आपकी प्रोडक्ट में विद रिस्पेक्ट टू चेंज करना एंड मॉडिफाई करना. So requirements are a step-by-step collection and a sequential refinement. It is a most important function in the job description, in the functionality to be done for the software engineer, for a developer. So why we need to know about requirement engineering? Number one reason is in Austria 340 companies were studied and more than 2/3 of 340 companies consider that SRS, that is Software Requirement Specification document, is the major problem in the development process. In the software development process, you can say why? Because requirements are not properly stated, not properly communicated, not properly documented, not properly validated, and not properly managed. That is the steps for the requirement engineering. Another study on web-based application, when considered, 16% systems fully met their requirements, while 53% deployed system do not. So it means that very limited ratio is accurate for the successful project, while the major ratio, that is 53%, is for the failure ratio. Means वो एप्लीकेशन जो डिप्लॉय हो चुकी हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक मीट की गई या नहीं की, उनकी फेलियर रेशियो 53% था, while वो एप्लीकेशन जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को मैच कर रही हैं और डिप्लॉय की गई उनका सक्सेस रेशियो 16% है. So why requirement engineering? Another reason, a study among 8,000 projects was carried out. 30% projects fail before completion. Why? And again, the other part, almost half do not meet the customer requirements. Why fail? Because of communication barrier in the requirements. Unclear objective of the requirements. Not realistic schedules aligned with respect to the requirements. And expectation of the user is different as compared what is going to be designed and implemented, and poor user participation. User is not involved during the requirement elicitation design phase especially. So we need to consider few basic rules and principles for the requirement engineering. What are them? We need to identify and we need to involve all the stakeholders. Who are the stakeholders? किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो तमाम लोग जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स पे, वो स्टेक होल्डर होते हैं. लाइक आपके डेवलपर, आपके डिजाइनर, आपके कस्टमर्स, आपके मैनेजर्स, वो आपके स्टेक होल्डर्स हैं. एंड वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं? वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि ये जितना भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट है ये सारा आपका जो है वो अलाइन हो जाए. नंबर वन. नंबर टू, वो रियलिस्टिक स्केड्यूल जो है वो नहीं देख रहे होते, वो रिक्वायरमेंट्स को नैरोली फोकस कर रहे होते हैं स्टेक होल्डर्स. नैरोली फोकस मीन्स कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये रिक्वायरमेंट जो है 2 दिन में बन जाएगी, जबकि एक्चुअली वो मिनिमम 4 डेज का काम है. सो वो चीजों को अनरियलिस्टिकली कंसिडर कर रहे होंगे. Now another concept of requirement engineering is, first we need to know what is our requirement. The description of any software product that we are going to develop, that what the system should do as a requirement. क्या करेगा, उसके जो फीचर होते हैं जो उसके अंदर हम बिल्ड करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. So services that the software will provide and किन limitations के ऊपर वो ऑपरेट करेगा, मैकेनिज्म क्या होगा उसी सॉफ्टवेयर के अंदर
फंक्शनैलिटी क्या होगी, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. सो अकॉर्डिंग टू IEEE 601.12, it's a standard for the requirement. There are two things that are defined for requirements. Number one, requirements solves a user problem. If you have taken a right requirement, it is going to solve the user problem. Number two, it must met or possessed by the system to satisfy a formal agreement. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को, वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डिजाइन और डेवलप करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को फॉर्मली डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए. जैसे हमने एग्री किया सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर हम उसको एग्रीमेंट कर लेंगे. सो ये एक फॉर्मल वे ऑफ एग्रीमेंट है बिटवीन ऑल द स्टेक होल्डर्स. सो आफ्टर द डेवलपमेंट फेज in implementation phase we can verify in the testing phase कि हमारे formal agreement क्या था. and third कि representation है आपकी ये दोनों conditions की, user की needs की and formal agreement की documented form में. now the types of the requirements, there are two major categories for the requirements. number one is functional requirement and number two is non-functional requirement. What is functional requirement? Statement of services. By the statement of services means क्या चाह रहे हैं आप कि आपकी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो क्या परफॉर्म करेगी, उसके एक्शंस की बात हो रही है. नंबर टू, किसी भी इनपुट के अगेंस्ट राइट इनपुट है या रॉन्ग इनपुट है, इसके ऊपर बात हो रही है कि उसके अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कैसे करेगी. फॉर एग्जांपल अगर एक लॉगिन के मॉड्यूल की बात की जाए, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड की फील्ड है, एक राइट यूजर नेम दिया जाता है, राइट पासवर्ड दिया जाता है और लॉगिन का बटन प्रेस किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करना है कि वो लॉगिन कर दे उस एप्लीकेशन के होम पेज पे. And if a wrong username or password is given and login button is pressed, तो वो relevant right accurate message आ जाए कि username and password is not correct. So किसी system react कर रहा है ये requirement define कर रही है. Then how system behaves in particular situation. For example अगर multi users हैं तो multi users के लिए हर अपना व्यू है, एक एप्लीकेशन है उसमें एक फॉर एग्जांपल टीचर्स का अपना व्यू है, स्टूडेंट का अपना व्यू है, स्टाफ जो अटेंडेंस लगा रहा है उसका एक अपना व्यू है. तो हर एक को उस वेब बेस्ड एप्लीकेशन में अपने रेलिवेंट व्यू को रिस्पॉन्स करवाना होगा. सो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर यूजर के लिए, पर्टिकुलर एक्शंस के लिए आपने कौन सा व्यू दिखाना है, ये भी आप रिक्वायरमेंट में डिफाइन करेंगे. सो दीज आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नॉर्मली किसी भी एप्लीकेशंस के अंदर जो है वो यही होती हैं: स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, लोड, स्ट्रेस. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपकी सर्विसेज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. सो दीज अप्लाइज एज अ होल ऑन द सिस्टम. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर फीचर के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये एक पूरी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं. सो आपकी एप्लीकेशन रिलायबल रिजल्ट दे, आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. नाउ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आर बेसिकली इज अ प्रोसेस ऑफ आइटरेटिव स्टेप्स. आइटरेटिव स्टेप मीन्स एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन. इटरेटिव स्टेप भी होते हैं, सीक्वेंस स्टेप को इटरेटिव कहते हैं. एंड चेंज. सो रिक्वायरमेंट्स एक गो में, एक स्टेप में आप गैदर नहीं करते, एनालाइज भी नहीं करते, स्पेसिफाई भी नहीं करते. आप स्टेप बाय स्टेप आप फर्स्ट फेज के अंदर रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, सेकंड फेज में उनको इम्प्रूव करेंगे, थर्ड फेज में आप रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे, फोर्थ फेज में उनको फाइनलाइज करेंगे, देन आप उनको वैलिडेट करेंगे. सो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है उनको फाइनलाइज करने की और उनमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन को एकोमोडेट करने की.
So key things to be considered for requirement is that requirement should be have negotiation. कि requirement should be discussed before finalization. Second, सिनेरियो बेस्ड डिस्कवरी, यूजर के नीड के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स इमर्ज हो रही होती हैं। एक यूजर जिस पर्पस के लिए एक एप्लीकेशन के अंदर एक सॉफ्टवेयर को यूज करेगा, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी सॉफ्टवेयर को, सो उसके अंदर उसके डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वो क्या चाह रहा है उस वक्त, उसके एक्शंस के मुताबिक रिक्वायरमेंट्स इमर्ज कर रही होंगी और उन रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रॉपर लिमिटेशन के साथ आपने मेंशन करना है। लेट्स सपोज एक एटीएम का सिनेरियो है, तो क्लियरली मेंशन हो कि एक यूजर ने एटीएम कार्ड इंसर्ट किया, उसके पिन वैलिडेट हुआ या वैलिडेट नहीं हुआ। अगर वैलिडेट हुआ तो वो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके अकाउंट टाइप पूछेगा, वो करंट है, वो सेविंग है, वो कौन सी अकाउंट कैटेगरी है। देन क्लियरली अगर वो अमाउंट विड्रॉ करता है तो अगर उसका सेम बैंक है जिसके अंदर उसका अकाउंट था और उसी अकाउंट से, उसी एटीएम अकाउंट की एटीएम से अगर वो अपने पैसे विड्रॉ करवा रहा है, सो क्लियरली डिफाइन हो कि उसके ऊपर उसकी विड्रॉ अमाउंट जो है उसके ऊपर किसी सर्विस चार्ज नहीं होंगे। अगर उसका अकाउंट जिससे वो विड्रॉ करवा रहा है और वो एटीएम किसी और बैंक की है तो उस पर सर्विस चार्ज लागू होंगे। सो ये कंस्ट्रेंट्स और ये कॉन्टेक्स्ट उसका क्लियरली डिफाइन हो। सो writing the requirements in a document needs a very good expertise and skill for a requirement analyst. So this process of writing down the user requirements and the system requirement in a document, and that document is said to be software requirement specification. And this process is said as requirement specification process, writing the agreed requirements in SRS. So what are the user requirements? Number one, who do not have a technical background. These are the need of the user. They should be understandable for the user who are going to use your system. And it should avoid any complex notation, use simple tables, simple forms in simple user language. And the second one is system requirements. These are designed and developed for software engineers. Starting point of the software design. These are for the designer initially. For the system requirements, I am saying these are for the designers and later on proceeding towards the developers. So how a system provides the services as designed in it, and it includes more technical information about the system. So natural language specification. In it, these are simple language, stories, or in itemized form. Itemized means आपने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आपने नंबर फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में एक एक कॉन्सेप्ट को मेंशन किया हुआ है. सो यू विल क्रिएट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट. आपके पास रिक्वायरमेंट को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट IEEE ने, आपके ACM ने डिफाइन किए हुए हैं, आपने उनको फॉलो करना है. एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेसेसरी रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट, डिजायरेबल रिक्वायरमेंट्स जो है. सो कौन सी रिक्वायर्ड है, कौन सी आपकी विश लिस्ट में आ रही है. एंड इनको लिखते हुए आपने टेक्निकल वर्डिंग्स को यूज नहीं करना. एंड यू हैव टू मेंशन रैशनल सोर्स. क्या है आपका स्टेक होल्डर ने बताया, किसी कंपटीटर से देखा, आपके पास ये रिक्वायरमेंट क्यों ओरिजिनेट हुई. यू हैव टू मेंशन एंड यू हैव टू एसोसिएट इट विद द रिक्वायरमेंट. सो रिक्वायरमेंट का नॉर्मली एक स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है रिक्वायरमेंट का. सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन होती है कि ये एक रिक्वायरमेंट की डिस्क्रिप्शन है. फॉर एग्जांपल एक लॉगिन की रिक्वायरमेंट है तो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी कि ये लॉगिन को क्रिएट होना चाहिए एक मॉड्यूल के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर. सो ये इसकी डिस्क्रिप्शन आप मेंशन करें. देन इनपुट्स, क्या इनपुट्स होंगे लॉगिन के लिए, कि आपके पास एक यूजर नेम होना चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए, और ये उसकी इनपुट्स होंगी. और आउटपुट क्या होनी चाहिए कि लॉगिन के बटन के प्रेस करने के ऊपर वो होम पेज ऑफ एप्लीकेशन को रीडायरेक्ट करना चाहिए.
अब वो एक्शंस होंगे डिस्क्रिप्शन में, सीरीज में एक्शंस होंगे। स्टेप 1 एक वेब ब्राउजर को ओपन किया गया, स्टेप 2 उसका एक वैलिड यूजर नेम दिया गया, स्टेप 3 एक वैलिड पासवर्ड दिया गया, स्टेप 4 लॉगिन का बटन प्रेस किया गया। तो ये एक डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शन है स्टेप बाय स्टेप। प्री कंडीशन, सपोज अगर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन का लॉगिन है तो प्री कंडीशन में हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, हमारे पास एक वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड होना चाहिए ऑलरेडी, जो हम यूटिलाइज करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शंस में। एंड पोस्ट कंडीशंस कि एप्लीकेशन की जो हमारे पास एग्जीक्यूशन हुई तो उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स के ऊपर हमने क्या क्या कंडीशंस जो है वो हमारे पास सामने आ रही हैं। पोस्ट कंडीशंस को आपने कंसिडर करना है। ये एक डायग्राम है जो हमारा प्रोसेस बता रही है पूरे रिक्वायरमेंट का। सो इफ यू डू कंसिडर, इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो है वो रिक्वायरमेंट्स को आप एलिस्टेट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को आप गैदर करते हैं डिफरेंट टेक्निक से और एनालाइज करते हैं। जो आप रिक्वायरमेंट्स गैदर करके एनालाइज करते हैं उनको निगोशिएट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट करते हैं उनको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट करने के बाद उनको आप वैलिड करते हैं, उनको आप वेरिफिकेशन के थ्रू चेक करते हैं और आप देखते हैं क्या वो ट्रेसेबल है, मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है, और देन आप उसकी वैलिडेशन के बाद उसको मैनेज कर रहे होते हैं कि चेंज को, क्योंकि उसके अंदर मॉडिफिकेशन आ रही है तो हम कैसे मॉडिफिकेशन को ट्रैक डाउन करेंगे कि प्रीवियस चेंज क्या थी, करंट चेंज क्या है। सो ये एक पूरा प्रोसेस है कंप्लीट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। सो एलिस्टेशन एंड नेगोशिएशन इज द फर्स्ट स्टेप in the requirement process, requirement gathering and process. Then requirement engineer involves the stakeholders to define it according to the application domain, according to the services that we are going to develop for this application, according to the constraints. So requirements are discovered using different techniques like I already told you, interview technique, scenario technique, क्वेश्चनएयर्स आप करते हैं डिफरेंट ऑडियंस से, अपनी टीम में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, यूज केस लिखते हैं और वो डिस्कस करते हैं आप। सो दीज आर द वेज फॉर द रिक्वायरमेंट डिस्कवरी। इन रिक्वायरमेंट्स को आप फिर क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में आप इनको डिस्कस करते हैं, फिर आप अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर इनको प्रायोरिटाइज करते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल बजट एंड टाइम आप इनको निगोशिएट करते हैं। जब ये आपकी फाइनलाइज हो जाती है रिक्वायरमेंट्स तो आप इनको डॉक्यूमेंट करते हैं। कंसेंसस मींस म्यूचुअल एग्रीड से, म्यूचुअल राय से आप इसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और देन इन रिक्वायरमेंट्स को आप वेरिफाई करते हैं एंड वैलिडेट करते हैं। सो वेरिफिकेशन मींस कि आप अपनी जो चीजें कर रहे हैं क्या वो सही अंदाज में कर रहे हैं, और वैलिडेशन मींस कि आपने जो किया क्या वो सही किया। सो एक आपकी प्रोसेस है कि आप जिस अंदाज से वो सारा वैलिड चेक कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को ले रहे हैं, देख रहे हैं क्या वो अंदाज काम करने का ठीक है। एंड सेकेंडली आपने जो काम किया, वो काम जो आपका टास्क था रिक्वायरमेंट का, वो अपने सही रिक्वायरमेंट्स को लिया कि नहीं लिया। सो दिस इज वैलिडेटेड। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग all the changes and during the requirement engineering process and development. So complete requirement को लिस्टेट करना, उनको मैनेज करना, उनकी चेंज को मैनेज करना, ये कंप्लीट जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस है। और उसकी जो मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है, चेंज को हैंडल करना, ये रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस है। सो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी जो चेंज है, उसकी जो मॉडिफिकेशन आ रही है स्टेक होल्डर की वजह से, उसको कंट्रोल करना। सो देखते हैं कि क्यों चेंज आ रही है, उसकी रीजन क्या है, और उस चेंज की वजह से कितना इफेक्ट हो रहा है स्केड्यूल में, कॉस्ट में कितना इफेक्ट हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन जो उस चेंज की वजह से आ रही है उसमें कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना स्किल लेवल चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन डेप्थ फॉर द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट बिफोर अप्लाइंग और बिफोर एडजस्टिंग दैट पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगर स्पेसिफिकली हम वेब के लिहाज से बात करें तो वी नीड टू कंसिडर फ्यू थिंग्स। नंबर वन, मल्टी डिसिप्लिनरी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए। एक्सपर्ट्स डिफरेंट डिसिप्लिन से हमारे पास, मीडिया से हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, हमारे पास यूजर इंटरफेस के एक्सपर्ट्स होते हैं, डिजाइन एक्सपर्ट्स होते हैं,
कंटेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास, कॉग्निटिव स्किल्स के एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे पास। सो इन सारे डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस में। एंड ये एक चैलेंजिंग टास्क है कि इतने डिफरेंट डायमेंशंस के लोगों को हम उनकी सारे म्यूचुअल कंसेंट उनका एग्री करवा लें, उन सारों की इत्तेफाक राय शामिल हो उस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस में। इट्स अ डिफिकल्ट जॉब टू डू। देन अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स। समटाइम्स हम किसी प्रोडक्ट को जब बना रहे होते हैं तो हमारे पास उसका यूजर फिजिकली मौजूद नहीं होता, हम उसके एक यूजर को अज्यूम कर रहे होते हैं, और यूजर एक स्टेक होल्डर होता है। जब यूजर हमारे पास मौजूद नहीं होता तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट को भी लैक कर रहे होते हैं। सो उसके कॉन्टेक्स्ट के लैक करने की वजह से हम उसकी बहुत से एस्पेक्ट्स को कंसिडर नहीं करते और हमारे पास एक स्टेबल स्मूथ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकेशन नहीं हो पाती। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जब हमारे पास यूजर मौजूद नहीं होता, सो हमें उसका एक अल्टरनेट यूजर फाइंड करना होता है जो हमें एक सुटेबल रिक्वायरमेंट्स बता सके उनके बारे में। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की स्पेसिफिकेशन में फॉर अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन कि रिक्वायरमेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही होती हैं, रिक्वायरमेंट्स तेजी से मॉडिफाई हो रही होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेक होल्डर्स, और उसकी कंस्ट्रेंट्स भी अकॉर्डिंगली अप्लाई होंगी। जब एक रिक्वायरमेंट का स्कोप चेंज हुआ उसकी कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। सो उसके अगेंस्ट उसकी इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर डायनेमिक इफेक्ट आएगा, टूल्स जिनके अंदर डेवलप कर रहे होंगे उन पे इफेक्ट आएगा। सो इट इज लिटरली अ वेरी टफ जॉब, अ हार्ड जॉब टू स्टेबलाइज द रिक्वायरमेंट, कि वो एक टाइम के ऊपर स्टेबलाइज मींस कि टाइम के ऊपर एग्रीड हो जाए और उनमें मेजर चेंज ना आए, और उन्हीं को हमें डिजाइन इंप्लीमेंट करना पड़े। इसके अलावा हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमने जिस इन्वायरमेंट में जाके अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करना है उस इन्वायरमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो क्लाइंट की इन्वायरमेंट, ऑपरेशनल इन्वायरमेंट जो कस्टमर की होती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल ही होता है। इन सम केसेस पॉसिबल होता है। कब पॉसिबल होता है? जब आपकी एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत लो हो, सिंपल एप्लीकेशन हो जो इजीली किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल एंड इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट एज वेल। क्लाइंट की, कस्टमर की इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट उसकी प्रीवियस इन्वायरमेंट के मुताबिक डिजाइन एंड डेवलप की गई और इम्प्लीमेंट की गई, अब उसकी रिक्वायरमेंट की इन्वायरमेंट चेंज होगी, सो डेफिनेटली क्वालिटी इफेक्ट हो रही है। सो क्वालिटी के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स टाइम, उसका जो बैंडविड्थ है उसका इफेक्ट होगा डेफिनेटली। देन आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम जो होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जो ओल्ड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में आपके पास बने हुए हैं, उनकी कुछ अपनी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। लाइक उनकी ओल्ड टूल एंड टेक्नोलॉजी में बनाया है, आपने उनको इन्हांस करना है, इन्हांसमेंट आपने नए वर्जन में की, तो पुराने वर्जन में किसी सॉफ्टवेयर के साथ उसको चेंज करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो ये इस तरह की कंस्ट्रेंट्स होती हैं कि समटाइम्स नहीं भी हो पाता। एंड एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को अब ड्राइव कर रहे हैं कि मैक्सिमम पॉसिबली हम उसको एग्जिस्टिंग को कि हम न्यू के साथ इंटीग्रेट कर लें। सो ये हमारे साथ एक प्रॉब्लम होता है, इसमें भी हमें काफी ज्यादा वो एफर्ट करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ता है। देन क्वालिटी एस्पेक्ट्स, ये डिसीजन होने चाहिए हमारे पास, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमें लेने हैं क्वालिटी एस्पेक्ट पे, परफॉर्मेंस पे, स्ट्रेस पे, सिक्योरिटी पे, अवेलेबिलिटी पे। सो क्वालिटी एस्पेक्ट्स किसी भी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के प्रोसेस के अंदर एग्रीड रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हुए फॉर अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्रिटिकल है, और ये एस्पेक्ट्स हमें कंसिडर करने होते हैं ड्यूरिंग अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन स्पेशली। और एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन लेना इन क्वालिटी एस्पेक्ट्स को, क्वांटिफाई करना लोड को, परफॉर्मेंस को, अवेलेबिलिटी को बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन फेज, इट्स अगेन हार्डर, इट्स नॉट एन इजी जॉब। यूजर इंटरफेस हमारे पास अनदर प्रॉब्लम है। वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ सक्सेस फॉर एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज यूजर इंटरफेस। It's again a very critical aspect of a user, because
हमें इसके लिए यूजर इंटरफेस के प्रिंसिपल्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है और अप्लाई करना है. If we avoid UI design principles and if we avoid the UI यूजिबिलिटी प्रिंसिपल्स, यूजर फ्रेंडलीनेस नहीं है, तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स भी जिनमें बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन उसकी यूजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर नहीं होती, वो फ्लॉप हो जाती हैं, वो फेल हो जाती हैं, वो मार्केट में पेनिट्रेट नहीं कर पाती, उनमें रेवेन्यू गिवन नहीं होती. एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, the another very important factor for a requirement specification is accuracy of the data. कितना एक्यूरेट, कितना रिलायबल डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्या है आपका उस राइट कंटेंट के साथ, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट यू वांट टू अचीव, इट शुड बी क्लियरली डिफाइंड. उस डाटा की वर्थ कितनी है एंड वो कितना कंप्लीट है, और इसका प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है कि सपोज आप टेक्सचुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑडियो फॉर्म में, उसके प्रेजेंटेशन का स्टाइल कितना क्लैरिफाई कर रहा है उस रिक्वायरमेंट को. सो कंटेंट की क्वालिटी की ये फैक्टर्स जो हैं, दीज आर आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन फॉर अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. सो सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, इट इज वेरी वेरी क्रूशियल. अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, एंड डेफिनेटली आप उसको समझ नहीं पाएंगे तो आप प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे और उसकी फेलियर की रूट काजेस बन जाएंगी. सो नॉर्मली वेब बेस्ड एप्लीकेशन में आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लार्ज लेवल के कंपोनेंट्स होते हैं, लार्ज एंटिटीज होती हैं. एंड व्हाई वी नीड देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड देम. आइदर ये हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, या आइदर ये इन्हांसमेंट के लिए मॉड्यूल रखा गया, या इधर ये हमारा जो है कॉस्ट इफेक्टिव मॉड्यूल है, या इधर ये कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने के लिए है. सो वी नीड टू नो, एंड वट एवर द रीजन इज, हाउ यूजर इज गोइंग टू यूज इट, व्हाट विल बी द स्टेप्स, किस एनवायरमेंट में यूज करेगा, एक्शंस क्या परफॉर्म करेगा. सो वी नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट. एंड स्टेक होल्डर्स, ऑलरेडी डिस्कस, स्टेक होल्डर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपके सिस्टम पे डायरेक्टली. तमाम स्टेक होल्डर्स को ग्रुप अप करते हैं आप. जो टीम है आईटी को अलग कर दें, जो यूजर्स हैं उनको अलग कर दें, जो आपके मैनेजर्स लेवल के लोग हैं वो अलग कर दें, आप उनको ग्रुप करें और उनको इन्वॉल्व करें. टाइम टू टाइम आप उनको इन्वॉल्व करते रहें डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर. देन बैलेंस करें. एक ग्रुप जो किसी भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स को लेकर आता है, वो दूसरी ग्रुप के अंदर जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट के साथ उसका जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन और ओवरलैपिंग के पॉइंट्स को सेपरेट कर रहे हो. एंड रिपीट करें ये प्रोसेस हो, एक रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको डिस्कस करके फाइनलाइज करना. ये जब रिपीटिशन करेंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी और एक वैलिड ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सामने आएंगी. स्टेप बाय स्टेप हमें रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है, आइटरेटिवली डिफाइन करना है और कंसिस्टेंट होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स. अगर एक सिस्टम के अंदर एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उसके अंदर एक यूजर के लिए 3 तरह के सपोज यूजर्स हैं. स्टूडेंट्स बेस्ड कोई एप्लीकेशन है, स्टूडेंट एक यूजर है. लेट्स सपोज अगर वो स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का है तो स्टूडेंट की डिपार्टमेंट चेंज से उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में चेंज नहीं होनी चाहिए. इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं. अच्छा, यूजर इंटरफेस के अंदर कलर स्कीम की, ऑब्जेक्ट्स की, विजुअल ऑब्जेक्ट्स की, सपोज रेडियो बटन है, सर्च बॉक्स है, इनके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. कंटेंट के अंदर फॉन्ट स्टाइल की, फॉन्ट टाइप की, कंटेंट को प्रेजेंट करने के जो नॉर्म्स होते हैं, कंसिस्टेंसी हो. टेस्ट केसेस आप टेबुलर लिख रहे हैं, उसकी यूएमएल डायग्राम बना रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी आपको चाहिए. सो की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपको फिजिबल आर्किटेक्चर बनाने हैं, मेजर यूज केस बनाने हैं और इनिशियल प्लान बनाना है अपना रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन का. रिस्क, अगेन हम देख रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट एक इज जस्ट लाइक अ हार्ट फॉर द रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस. एनालिसिस में हम जब हम रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर रिस्क के फैक्टर को ही देख रहे होते हैं. सो ग्रेटेस्ट रिस्क क्या होते हैं किसी भी सिस्टम के साथ? इंटीग्रेशन इश्यूज,
एग्जिस्टेंस सिस्टम के साथ। 2, एक्चुअल सिस्टम की क्वालिटी क्या होगी और एक्सपेक्टेड क्वालिटी क्या है, ये एक रिस्क है, इसमें डिफरेंस आ रहा होता है। सो हमें इन रिस्क को हैंडल करने के लिए, इन रिस्क को मेडिटेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने हैं। नंबर 1, प्रोटोटाइपिंग स्टाइल को देखना है। सो हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं, क्लाइंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट एक रिलायबल रिक्वायर्ड यूजर फ्रेंडली सिस्टम बने और रिस्क अवॉइड हो। चेंजेस जो हमारी कस्टमर हमें शो कर रहा होता है वो हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड किसी भी सिस्टम को जो हमने इंटीग्रेट करना है वो हम इनिशियल लेवल पे, अर्ली लेवल पे इंटीग्रेट कर लेते हैं, सो दैट हमें लेटर स्टेजेस पे इंटीग्रेशन इश्यूज फेस ना करने पड़े। सो ये सारी जो चीजें थी ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग से रेलिवेंट थी। अभी अब इसी लेक्चर में हम इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए मॉडलिंग पे जाएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू मॉडल वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर दीज रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज सिस्टम मॉडलिंग? System modeling is basically a process of developing abstract model for system. Generic model आपके सिस्टम के जब बनाते हैं तो वो आपकी सिस्टम मॉडलिंग का पार्ट है, और ये एक स्पेसिफिक ग्राफिक नोटेशन है, उसके मुताबिक हमें डेवलप करनी होती है। That is UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। हमारा ये एक डिफाइंड स्टैंडर्ड प्रोसेस डिफाइन है, और ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर मॉडलिंग द रिक्वायरमेंट्स। दैट इज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इसमें हमारे UML के अंदर डिफरेंट डायग्राम्स बनती हैं, और जो डिफरेंट डायग्राम्स होती हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, दैट प्रेजेंट्स डिफरेंट व्यू और प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सिस्टम। एक ओवरव्यू ऑफ द सिस्टम होता है, एक सिस्टम का जो है वो डिजाइनर व्यू में इम्पैक्ट है, एक डेटाबेस की फॉर्म में उसका इम्पैक्ट है, एक डेवलपर की फॉर्म में उसका एस्पेक्ट है। सो डिफरेंट इम्पैक्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके। सो एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिव क्या है? सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट, सिस्टम की इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव है। और इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव क्या है कि किस इन्वायरमेंट में और किस कंपोनेंट में आपस में डेटा फ्लो होगा और यूजर की इंटरेक्शन होगी। स्ट्रक्चर प्रोफाइल क्या है कि आपका जो सिस्टम है उसके जो मॉडल्स हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके सारे, उसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उनकी लेआउट्स आपने कैसे बनाई हैं। और एक बिहेवियर एस्पेक्ट है कि आपका सिस्टम ने किस वक्त किसी एक्शन के अगेंस्ट, किसी इवेंट के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्स करना है। सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सिस्टम के मॉडल करने के लिए। सो मॉडल्स आर यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज। व्हाई? टू ड्राइव सिस्टम रिक्वायरमेंट। और वो किस किस तरह के मॉडल हम करते हैं? यूज केस मॉडलिंग कर रहे होते हैं हम, एंड एक्टिविटी डायग्राम बना रहे होते हैं। देन डिजाइन फेज को हम मॉडल कर रहे होते हैं, क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए कि इंजीनियर्स को कि हमने क्या चीज डिजाइन करनी है। उसके लिए हम क्लास डायग्राम बनाते हैं, सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं। देन जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है हमारे पास, तो हम सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, ऑपरेशन क्या होगा। सो सिस्टम मॉडलिंग का क्या बेनिफिट हुआ? व्हाई वी नीड टू डू सिस्टम मॉडलिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम मॉडलिंग? It reduces the complexity. How? Because designers के लिए एक स्टैंडर्ड वे कम्युनिकेट कर दिया गया, एग्री कर दिया गया कि वो किसी भी सिस्टम के साथ एक स्टैंडर्ड नोटेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। उन्होंने कोई भी सिस्टम डिजाइन करना है, आप उनको UML की रेलिवेंट डायग्राम प्रोवाइड कर दें, दे नो व्हाट डज द डायग्राम मीन्स, उसकी नोटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दे विल डिजाइन अकॉर्डिंगली। द सेकेंड थिंग इज कि डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है वो हमारे डिजाइन डिसीजन पे इम्पैक्ट करता है। सो हमें डिजाइन डॉक्यूमेंट के अंदर मॉडलिंग को प्रेजेंट करना होता है, UML मॉडलिंग को, डायग्राम्स को प्रेजेंट करना होता है। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि हमारी डिफरेंट जो टीम्स होती हैं, डिजाइन टीम्स हैं, टेस्टिंग टीम है, डेवलपमेंट टीम है, इन टीम्स के दरमियान हमारे पास UML मॉडलिंग कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है, जो एक बेनिफिशियल टूल है हमारे टीम्स में कोऑर्डिनेशंस के लिए। सब मॉडलिंग की डायमेंशंस को कंसिडर करते हैं वन बाय वन। लेवल्स हैं, एक तो यूजर के लिहाज से हम देख रहे होते हैं, एंड यूजर जिसने एप्लीकेशन को यूज करना है, और यूजर किसी एप्लीकेशन को यूजर इंटरफेस के थ्रू यूज कर रहा होगा। सो हम देखते हैं हाउ एंड व्हाट of the application is going to be designed and developed on the user interface.
द सेकेंड वन इज एप्लीकेशन लॉजिक, उसके अंदर बिजनेस लॉजिक क्या लगी हुई है, उसके अंदर चेक्स जो आपको चाहिए सारे वो कौन कौन से आप परफॉर्म कर रहे हैं। सो उसके एस्पेक्ट्स को देखना, उनके ऑब्जेक्ट्स को देखना, उनकी एट्रीब्यूट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उन ऑब्जेक्ट्स के आपस में रिलेशनशिप्स क्या है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी एप्लीकेशन लॉजिक, ये एस्पेक्ट्स हम लोग देख रहे होते हैं। देन स्ट्रक्चर देख रहे होंगे हम कि हमारे स्ट्रक्चर क्या है, हमारा स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का, उसकी मॉडलिंग करते हुए एनालाइज कर रहे होंगे, फिर इसको डिजाइन लेवल पे देख रहे होंगे एंड देन वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एंड बिहेवियर एस्पेक्ट से उसको कंसिडर करना। सो हमारे फेजेस हैं डिफरेंट इस एस्पेक्ट्स में। नाउ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज बेसिकली अ विजुअल लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आर्टिफैक्ट ऑफ द सिस्टम। सो एक सिस्टम के जो भी आर्टिफैक्ट हम डिफाइन कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के, वो सारे आर्टिफैक्ट हमारे विजुअली जब कोई लैंग्वेज यूज करनी है तो दैट विजुअल लैंग्वेज इज बेसिकली अ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अब उसके अंदर कौन से एस्पेक्ट है? नंबर वन इज स्ट्रक्चर एस्पेक्ट, उसके अंदर क्लास डायग्राम है, एंड नंबर टू इज बिहेवियर एस्पेक्ट, उसके अंदर हमारे पास यूज केस डायग्राम है एंड स्टेट मशीन डायग्राम है। तो सबसे पहले हम क्लास डायग्राम को कंसिडर करते हैं। बिफोर क्लास डायग्राम कंसिडर दिस डायग्राम। इन दिस डायग्राम्स लेवल आर प्रेजेंटेड कि हमारे पास तीन किस्म के लेवल हैं। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट है, लिंकिंग ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट, एंड प्रेजेंटेशन यूजर लेवल लेयर की बात हो रही है। ये हमारे पास फेजेस हैं तीनों, एनालिसिस फेज है, डिजाइन फेज है, इंप्लीमेंटेशन फेज है। और ये हमारा सारा स्ट्रक्चर है डॉक्यूमेंट का, और बिहेवियर एस्पेक्ट्स हमारे कौन कौन से सिस्टम के अंदर। सो हमारे पास कस्टमाइजेशन है, यूजर का कॉन्टेक्स्ट, यूजर की एनवायरनमेंट की बैंडविड्थ क्या होगी, किन डिवाइसेस को वो यूज करेगा, उसको कंसिडर करना। सो ये तीनों चीजें जो है हमारे लेवल, हमारे एस्पेक्ट्स, हमारे फेजेस, हमारी जो कस्टमाइजेशन है, ये इफेक्ट कर रही होती है आपकी सारी की सारी किसी भी मॉडलिंग पे। अब हम रिक्वायरमेंट के अंदर जिस चीज को देखेंगे दैट इज टू थिंग्स, यूज केस डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम। मॉडलिंग में रिक्वायरमेंट्स को हम यूज केस में और एक्टिविटी में मॉडल कर रहे होते हैं, कंटेंट को हम क्लास डायग्राम में मॉडल कर रहे होते हैं, और हम नेविगेशनल जो मॉडलिंग है, फ्लो जो हमारा चल रहा होगा नोट्स के दरमियान, वो हम कर रहे होते हैं नेविगेशनल मॉडलिंग के जरिए। और हमारा जो यूजर इंटरफेस है, लेआउट्स हैं जो, वो प्रेजेंटेशन मॉडलिंग के जरिए हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो एनी एप्लीकेशन दैट इज अ वेब सेंट्रिक मॉडलिंग, UML is used with some extension from UWE. UWE is UML based web engineering, उसके साथ आप यूनिफाइड वेब इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। Now use case diagram. The goal of the use case diagram is to provide a high level explanation of the relationship between the system and outside world. So दिस इज अ यूज केस डायग्राम कि आपका सिस्टम जो है किसी एक्सटर्नल पार्टी से, एक्सटर्नल जो उसको इनपुट आ रही है, उसके साथ उसका रिलेशनशिप क्या होगा। द सेकेंड वन इज एक्टिविटी डायग्राम. Activity diagram is a basically graphical representation of workflow and step-by-step workflow of an action with support for choice, iteration and concurrency. So आपके actions कैसे perform होने हैं, उनकी step by step flow, और कौन सा action आपको अब देना है, और concurrent multiple users के लिए multiple actions या एक user के लिए multiple action concurrency किस तरह provide करनी है. We need to know about it. ओके जी, यूज केस डायग्राम हमारी जो है, इसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारा सिस्टम है, सिस्टम हमारा एक कंपोनेंट है, हमारे सिस्टम का नाम आ जाएगा, और कंपोनेंट को हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यूज केस डायग्राम रेफर्स टू रिप्रेजेंट्स अ फीचर रिक्वायर्ड फॉर अ सिस्टम. फॉर अ सिस्टम मीन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन. सेकेंड, हमारे पास ये एक ओवल बॉक्स है जिसके अंदर हम टास्क को रेफर कर रहे होते हैं जो हम एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, और यहां पे हमारा यूज केस का टाइटल आ जाता है. देन हमारे पास एक्टर है. एक्टर इज द वन
हु ट्रिगर द यूज केस टू एक्टिवेट, जिसके किसी एक्शन के ऊपर यूज केस जो है एग्जीक्यूट होगा। सो ये हमारे पास एक्टर का सिंबल है, दिस वन। ये हमारे पास ऑलरेडी कंपोनेंट का सिंबल है, एक एचआर सिस्टम है, और कम्युनिकेशन लाइन इनके दरमियान में ये एक लाइन है जो रिलेशनशिप को शो करेगी, कम्युनिकेशन को शो करेगी कि एक्टर की क्या कम्युनिकेशन है विद द यूज केस। सो हमारे पास इसके अलावा जो सिंबल है वो इंक्लूड की एक रिलेशनशिप है, और एक हमारे पास एक्सटेंड की रिलेशनशिप है, इंक्लूड एंड एक्सटेंड। सो इंक्लूड की रिलेशनशिप हमारी कॉमन फंक्शनैलिटी या एक ऐसा कॉमन यूज केस जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको इंक्लूड कर रही है। सो किसी भी बेस यूज केस के साथ, प्राइमरी यूज केस के साथ आप इंक्लूड डॉटेड लाइन में लिखेंगे और ये इंक्लूड मेंशन करेंगे, और जो भी इंक्लूडेड का यूज केस है या उस किसी यूज केस का एक स्पेसिफिक फंक्शन है तो आप मेंशन कर सकते हैं। जबकि जो एक्सक्लूड है वो किसी भी एक्सटेंडेड यूज केस को एक एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी बेस्ड यूज के साथ अपने अटैच करनी है तो वो आप यहां पे मेंशन करेंगे, और एक्सटेंड का उसका जो नॉर्म है मेंशन कीजिएगा। अच्छा, अनदर कॉन्सेप्ट इज जनरलाइजेशन इन द यूज केस। Generalization is again a relationship from a child use case to the parent use case. It means कि एक child जो है can specialize all the behavior and characteristics described for the parent. So एक generalized use case है और ये generalization की approach है, और ये specified वो child है जिसकी तमाम सारी characteristics को, behavior को adopt कर रहा है। So हमारे पास ये एक यूजर है, उसमें से ये एक जेनेरिक यूजर है, और ये हमारे पास एक स्पेसिफिक यूजर है, रजिस्टर्ड यूजर, और ये जेनेरिक यूजर की तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वेब बेस्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए वी नीड टू नो अबाउट फंक्शनल एंड नेविगेशनल यूज केस क्लियरली। फॉर दैट वेब इंजीनियरिंग के अंदर ब्राउजिंग को हम टैग यूज करते हैं डबल हाइफन्स में, ब्राउजिंग को टू रिप्रेजेंट नेविगेशनल यूज केस, वाइल प्रोसेसिंग के लिए हम फंक्शनल यूज केस को मेंशन करते हैं, प्रोसेसिंग के वर्ड को। कंसिडरिंग फॉर एन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग सिस्टम, यूजर कैन सर्च एंड व्यू द वीडियोज एंड अ यूजर मस्ट रजिस्टर टू शेयर द वीडियोज। ये हमारे पास एक सिनेरियो है, और इस सिनेरियो को देखते हुए हम यूज केस देख रहे हैं। So, एक ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग सिस्टम है, ये हमारा कंपोनेंट था, हमने कंपोनेंट को बॉक्स में डाला, ये हमारा यूजर है, हमने एक्टर जो है उसको मेंशन किया, हमारा दूसरा एक्टर एक रजिस्टर्ड एक्टर है, सिनेरियो में 2 मेंशन थे। हमारा ये जो यूजर है ये एक जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर अडॉप्ट किए हुए, दैट्स व्हाई जनरलाइजेशन का सिंबल आया। ये इस यूज केस का टाइटल कि वो ब्राउज करना चाह रहा है एक वीडियो को, एंड देन ये उसका टाइटल कि वो एक वॉच करना चाह रहा है वीडियो को, एंड देन एक यूजर इसको रजिस्टर करना चाह रहा है या उसको रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करना चाह रहा है, और लॉगिन के बाद वीडियो को शेयर करना चाह रहा है। सो रजिस्टर जो है वो एक्सटेंड कर रहा है हमारे लॉगिन को, रजिस्टर्ड है तो उसकी नेक्स्ट फंक्शनैलिटी होगी लॉगिन, जबकि लॉगिन जो है ये नेसेसरी है वीडियो को शेयर करने के लिए। तो ये इसका बेस यूज केस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कॉमन बिहेवियर पे, और ये वो 3 यूज के साथ रिलेशनशिप बताए गए हैं जो जो रिलेशनशिप उसके एक्शंस के परफॉर्म कर सकता है, जो जो उसका रिलेशनशिप है। जबकि ये रजिस्टर यूजर के दोनों एक्शंस हैं, टास्क के, कि वो ब्राउजिंग करेगा एंड देन आफ्टर द ब्राउजिंग लोड करते हुए वो वीडियो को शेयर करेगा। नाउ एलिमेंट्स ऑफ एन एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम एक प्रोसेस है वेयर आप फ्लो में बता रहे होते हैं विच वर्क इज गेटिंग डन, कुछ काम हो रहा होता है। सो वो एक्टिविटी आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में एजिस कॉर्नर से कर्व हो आप मेंशन करेंगे, और जो भी ट्रांजैक्शन उसके अंदर हो रही है वो आप ट्रांजिशन फ्लो के जरिए बता रहे होंगे कि फ्लो क्या है। सो अगर आपने एक पेज रीड किया और आप उसको टर्न कर रहे हैं नेक्स्ट पेज को, तो ये एक इस जो है आपके पास ये एरो है, ये उसकी हेड है, ये उसकी टेल है, तो आप टेल और हेड को आपस में रिलेट करेंगे, हेड को जहां पे आपका टारगेट ऑब्जेक्ट है। एलिमेंट्स ऑफ एक्टिविटी डायग्राम में हमारे पास नेक्स्ट चीज है गार्ड कंडीशन। गार्ड कंडीशन हमारी ट्रांजिशन की
तौर पे असाइन की जाती है ताकि हम रिस्ट्रिक्ट करें एक चेंज को दूसरी चेंज की, हमारी गार्ड कंडीशन है। सो गार्ड कंडीशन में हम ये मेंशन कर रहे हैं गेटिंग ड्राइविंग लाइसेंस, हमारी गार्ड कंडीशन है कि ये हमारी ट्रांजिशन जो है एक रिस्ट्रिक्ट कर रही है दूसरे को। सो इसके ऊपर हमारी गार्ड कंडीशन हमने मेंशन कर दी। अब हमारी एक्टिविटी डायग्राम के कुछ और सिंबल्स हैं, उनको हम देख रहे हैं। डिसीजन के लिए हमारा डिसीजन बॉक्स है, मर्ज करने के लिए हमारे डिसीजन बॉक्स है, लेकिन उसके साथ हमारे एक डाउन एरो भी अगर आ रहा है, और स्टार्ट सिंबल के लिए फिल्ड सर्कल विद राइट एरो नॉर्मली and filled circle with space and a outer boundary, another circle is our end circle. So अब हमारे पास एक यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल होने की एक्टिविटी डायग्राम को हम देख रहे हैं। सो स्टार्ट सिंबल, यूजर फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यूजर ने एंटर किया, जो भी उसकी रिक्वायर्ड फील्ड्स थे, पैरामीटर्स थे, एंटर किए। यूजर सेलेक्ट द सबमिट बटन, सपोज उसने रजिस्ट्रेशन में नाम मेंशन किया, अपना CNIC मेंशन किया, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, सो मेनी एल्स। अब उसे सबमिट बटन प्रेस किया। सबमिट बटन के ऊपर वो इसको वैलिडेट करेगा क्या उसके तमाम फील्ड्स जो हैं वो राइट वैल्यूज रख रहे हैं, यस और नो। इफ इट इज नो, सिस्टम शो करेगा एरर कि आपकी ये फील्ड्स जो है मैंडेटरी थे, या आपने रॉन्ग जो है वैल्यूज दी हैं, या आपने ब्लैंक छोड़ दिया। और अगर रॉन्ग दिया तो करेक्ट इनपुट लेगा, और जब तक वो करेक्ट इनपुट नहीं करते प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर वो राइट इनपुट है तो यूजर रजिस्टर उसका रेलिवेंट जो भी मैसेज है वो शो हो जाएगा, और एक्टिविटी डायग्राम का टास्क एंड हो गया अपने रेलिवेंट सिंबल के साथ। सो ये कुछ रेलिवेंट हमारे पास सिंबल्स हैं जो हम यूज करते हैं। नंबर 1, यूजर एक्शन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये सिंबल है। सबसे पहले ये एक्टर वाला साथ एरोस है। देन सिस्टम के लिए हम बॉक्स के साथ एरोस डाल रहे हैं। देन डिस्प्ले के जरिए बॉक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। देन नेविगेशन के साथ हम एरो की बैक पे स्मॉल माइनस स्क्वायर है। और देन हमने कोई पेन डिस्प्ले करनी है, आउटपुट डिस्प्ले करनी है, तो हम क्रॉस डायगोनल्स में एरो डाल रहे हैं। और इंटरेक्शन पिन शो करनी है तो हमारे पास एरोस इनर साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स हैं जो एक्टिविटी डायग्राम्स में यूज हो रहे हैं या विद इन द कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं। अब ये एक और एक्टिविटी डायग्राम है हमारे पास, एक फॉर्म को रजिस्टर करने के लिए एक सिस्टम इंटीग्रेट कर रहा है। सो वहां पे हमने जो हमारे रेलिवेंट, इसके रेलिवेंट जो सिंबल हमने अभी देखा था इंटरेक्शन पिन का, इंटरेक्शन पिन हमारे पास आ रही है, इंटरेक्शन ईमेल हमारे पास आ रही है, पासवर्ड हमारे पास आ रहा है। यूजर उसके रेलिवेंट इनपुट डाटा दे रहा है, डाटा वैलिडेट किया जा रहा है, डाटा फ्लो में जा रहा है, उसकी जो भी रेलिवेंट डाटा है, सिस्टम का एक्शन हो रहा है, एक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है और सिस्टम स्टॉप हो रहा है। सो दिस इज आवर एक्टिविटी डायग्राम फॉर द सिस्टम, विद इन द सिस्टम। सो हमारे पास एक सिस्टम के अंदर हमारे पास नेम आया, उसकी टाइप आई, उसका टेक्स्ट आया रेलिवेंट, उसकी ईमेल हमारे पास आ गया उस सिस्टम का, एंड देन उस सिस्टम के हमने रेलिवेंट जो है सारे यूजर की दी हुई एक्शंस को इनपुट किया, एंड देन उस सिस्टम की जो सारी वैल्यूज को इनपुट करने के बाद वैलिडेट किया, एंड वैलिडेट करने के बाद हमने रिक्वायर्ड डाटा को सेव कर लिया। सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, उसके प्रोसेस को देखा। देन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, SRS, और उसके अंदर हम रिक्वायरमेंट्स को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, और फिर वेब इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग को कैसे स्पेसिफाई करते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स को कंसिडर करते हैं और कैसे मॉडल करते हैं, उस चीज को हमने कंसिडर किया। एंड देन हमने सिस्टम मॉडलिंग देखी, वो सिस्टम जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी कंप्लीट मॉडलिंग की बात हो रही है, उसकी हमने मॉडलिंग कंसिडर की। उसके लिए हमने डिफरेंट नोटेशंस को देखा, उसमें हमने स्पेशली जो है यूज केस को देखा, हमने एक्टिविटी डायग्राम को देखा, हमने उनकी नोटेशंस को हमने फॉलो किया, और मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट देखी कि व्हाई वी नीड टू मॉडल एंड हाउ वी आर गोइंग टू मॉडल। सो दिस इज द टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।